Students, we are studying the chapter Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. In the previous video, we have discussed about restrictions on fundamental rights and we are studying fundamental duties. 6 fundamental duties we have studied and now we are going to start from number 7. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for all living creatures. So it is our duty that we are supposed to protect and improve our natural environment in which we are living. That also include forests, lake, rivers and wildlife. And we must have sympathetic behavior towards all living creatures. It is our duty to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. ऐसे ही हमें किसी भी बात पे बिलीव करना या किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए. We must know what is right or what is wrong. Firstly, we will think that we are human beings. On humanism, we must study. It is our duty to safeguard public property and to abjure violence. So, इट इज़ अवर ड्यूटी. हम किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ हम बेंचेस को ना तोड़ें, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट ना करें. इट इज़ अवर ड्यूटी. और वी शुड नॉट हैव वायलेंस. It is our duty to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. So it is our duty that we should try कि हमें सभी जगह क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अपने लेवल्स को राइज अप करने की कोशिश करनी है. देन पेरेंट्स और गार्जियंस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और and between the age of 6 and 14. So it is added by 86th amendment in 2002. So it is the duty of parents and guardians that they must provide chance to study to their children, those who are between the age of 6 to 14 years. Now directive principles of state policy. देखो बेटा, फंडामेंटल राइट्स एकदम क्लियर हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एकदम क्लियर हैं, बट ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है? प्रिंसिपल्स आपको सबको पता है, ठीक है. एक प्रिंसिपल तो होते हैं जो हमारे हेड ऑफ द स्कूल होते हैं, ठीक है, उनकी स्पेलिंग दैट इज़ डिफरेंट. बट ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या हैं? कुछ थिंकिंग हैं, कुछ हमारी लाइन ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है. अब जैसे कि क्या है, एक प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ कि मेन एंड वीमेन शुड बी इक्वल, है ना ये. अब अगर इस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के हम अपनी स्टेट में कोई पॉलिसी बनाते हैं जिससे मैन और वुमेन की इक्वालिटी बढ़ेगी, दैट विल बी नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. कुछ प्रिंसिपल्स जो स्टेट की पॉलिसी को रास्ता दिखा रहे हैं कि आपने इस रास्ते पे चलना है. ओके, सो स्टेट क्या करती है? स्टेट एक लॉ बनाती है कि 1/3 सीट्स किसको दी जाएंगी? विमेन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है. सो दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. The directive principles of state policy are guidelines, instructions given by the Constitution. एक तरह की guidelines हैं जिस पे हमें काम करना है, instructions हैं जिन पे हमें काम करना है. The governments at all levels are expected to frame their policies in accordance with these principles with an aim to achieve our national goals and establish a welfare state in India. तो गवर्नमेंट, जिस भी लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे ऑल आर एक्सपेक्टेड कि वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करें सो दैट हमारे जो नेशनल गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, जैसे पॉवर्टी ख़त्म करनी है, इक्वालिटी लानी है, ये सब कुछ पूरा हो सके.
Dr. Bhimrao Ambedkar considered these guidelines as powerful instruments for the transformation of India from a political democracy into an economic and social democracy. So Dr. Bhimrao Ambedkar, he also defined these directive principles of state policy as a very essential, important instrument. Now classification of directive principles. अब इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? Although the directive principles of state policy are in large number, they have been grouped into 4 categories. अब देखो इनको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. जैसे कि जो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें इकोनॉमी में ही रख दिया, जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं उनको सोसाइटी वाले में रख दिया, गांधी जी वालों को गांधी जी वाला दे दिया. ठीक है. अब देखो नंबर 1 इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन. तो क्या है ये? एक प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन है कि ऐसा होना चाहिए. अब इस गाइडलाइन को ध्यान में रख के आवर गवर्नमेंट विल मेक रूल टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल. सबके लिए लाइवलीहुड, सबको अपना पैसे कमाने के लिए रिसोर्सेज मिलने चाहिए. देन अब सोशल प्रिंसिपल जो सोसाइटी पे बेस्ड हैं, टू मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ. सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, पब्लिक हेल्थ इंक्रीज हो. अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. गवर्नमेंट नई नई वैक्सीन्स निकालती है. नाउ टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन. सो चिल्ड्रन को गार्ड करना, एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनकी, उसके लिए एक लॉ बनाया है कि अंडर 14 कोई भी बच्चा ऐसे हैजार्डियस प्लेस पे काम नहीं करेगा. इस चीज़ को ही तो ध्यान में रख के बनाया है. गांधीयन प्रिंसिपल्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो घर में इंडस्ट्री हम शुरू कर सकते हैं. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अब इंटरनेशनल लेवल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं. टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस. ठीक है. अब देखो ये एक हमारा प्रिंसिपल है हमारी कंट्री का, इसके लिए लॉज भी बनाए गए हैं. हमारी कंट्री पहले किसी के साथ वो वॉर तो नहीं शुरू करती, कभी भी नहीं होता ऐसा. इंडिया तो बहुत अच्छी कंट्री है. टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सो अगर दूसरे नेशंस को ज़रूरत पड़ती है इंडियन आर्मी की, देन वी हेल्प. ओके. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? So, though the directive principles of state policy are non-justiciable, yet these are the moral obligations on the part of the government at all levels. अब सिंपल सी ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, कोई वो तो है नहीं कि ये लॉ है, बट गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने लॉज को इन्हीं को ध्यान में रख के बनाना है. सो राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट. अब राइट टू एजुकेशन, इन्हीं के कारण, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कारण राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के. देन राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये देखो इतना सब कुछ गवर्नमेंट ने शुरू किया किस गाइडलाइंस पे? गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाली. ठीक है. डायरेक्टिव जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रख के ये सब कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया. सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर ओनली वी विल स्टडी टुडे. बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज करने के लिए हैं. थॉरो पढ़ना बहुत ज़रूरी है चैप्टर को, तभी आपको कुछ समझ आएगा, अदरवाइज तो सब कुछ ऊपर ऊपर से जाएगा. So students, revise the chapter thoroughly, try to read it again and again. Thank you. Have a nice day.